کاش کے لوگ دین کی اہمیت کو جانتے، پوری پوری رات موویاں دیکھنے والے دین کی اہمیت کو جانتے، سینما گھروں کو آباد کرنے والے دین کی اہمیت کو جانتے، مسجدوں کو ویران کرنے والے، چہروں سے داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکنے والے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے، کاش محسوس کرتے یہ جو دین تمہارے گھر تک پہنچا ہے، یہ جو قرآن تمہارے گھر تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام تمہارے گھر تک پہنچا ہے، کتنی بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرکار میرے امام حسین نے 18 سال کے بیٹے کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، ہم شبیہ پیغمبر کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، لیکن ہائے وہ منظر تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ اکبر 18 سال کے بیٹے کو لوگوں نے بارات کا دولہا بناتے تو دیکھا ہے، مگر کربلا میں ہم نے 56 سالہ باپ کو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بناتے دیکھا ہے۔ ایک باپ اپنے عصائے پیری کو اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بنا رہا ہے۔ میرے امام نے اپنے ہم شبیہ رسول بیٹے کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد تلوار ہاتھ میں دی اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ ہم شبیہ رسول جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، ماں کہتی ہے اکبر ذرا پلٹنا میرے بیٹے، ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ تو لوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بیٹا پلٹتا ہے اور ماں کی ممتا کی دھڑکنیں دل کی تیز ہو جاتی ہے، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہاجرہ تیری عظمت کو سلام، تیرا بیٹا گیا تھا تو گھر سے بہت دور گیا تھا، لیکن یہاں تو اللہ اکبر حسین کا بیٹا، شہربانوں کا بیٹا اور لیلا کا بیٹا، رباب کا بیٹا اللہ اکبر جا رہا ہے، تو یہاں نگاہوں کے سامنے بیٹے کو تڑپتا دیکھنا ہے، سسکتا دیکھنا ہے، بیٹے پر تیر اور تلوار چلتے دیکھنا ہے۔ ہاجرہ تیرے بیٹے کی عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرا بیٹا تو ایک چھری سے ذبح ہونے والا تھا، یہاں تو سینکڑوں تلواریں ہوگی حسین کے بیٹے کے لیے۔ اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں صبر و رضا کا پیکر، میں حضرت ابراہیم کی قربانی کو ہلکا نہیں سمجھتا، نہ ہلکا کہتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ذرا اندازہ تو کرے، ذرا اندازہ تو کرے۔ اقبال نے کتنی حسین بات کی ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا اور امتحان کا اندازہ تو کوئی کرے، آغاز اور انجام کا اندازہ تو کوئی کرے۔ مولا علی اکبر جیسے میدان کربلا میں گئے، ہم شبیہ رسول کو دیکھ کر ان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگی، ہمت جواب دینے لگی۔ میرے مولا علی اکبر نے آواز لگائی، ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ المختصر یہ کہ ان لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ حالانکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امام علی اکبر کو شہید کرنے سے پہلے شمر یا عمر سعد جو ہے آیا، اور آنے کے بعد کہا اے لڑکے تیری جوانی پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر تو حسین کو چھوڑ دے ہم یزید سے بڑا انعام دلوائیں گے، حسین کو چھوڑ دے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں تیرے سامنے رکھے جائیں گے، 3 دن کی تیری پیاس پہ ترس آتا ہے۔ مگر قربان جائیں آل محمد کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، علی کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ شہزادہ حسین کسی کے ہاتھ پر پانی کی بنیاد پر کب سودا کر سکتا تھا؟ آپ نے کہا عمر بن سعد تو نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے، ارے تو اپنے باپ کا غدار ہے، علی اکبر اپنے باپ کا غدار نہیں ہو سکتا، فاطمہ کے بیٹے کا ساتھ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، آپ نے بڑی غیرت کی باتیں کی، اور اس کے بعد جب اس ظالم نے سنا، چاروں طرف سے مولا علی اکبر کو گھیر لیا گیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ میرے امام علی اکبر نے جو ہے ان ظالموں کے چھکے چھڑا دیے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک نیزہ سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں گیا، اور فاطمہ کا چاند، علی کا لگتے جگر، حسین کا شہزادہ اللہ اکبر اپنی سواری سے زمین پر آیا۔ جیسے ہی سواری سے مولا علی اکبر زمین پر آئے، فرشتوں کی بھی چیخ نکل گئی ہوگی۔ آج تصویر مصطفیٰ جو ہے زمین پر آ گئی ہے، کتنا خوبصورت وہ نازنین جسم تھا، اس جسم پر زخم کیسے لگتے تھے۔ کسی مورخ نے ادیبانہ جوہر نہیں بلکہ عقیدتوں کے موتی بکھیرتے ہوئے کہا تھا کہ علی اکبر کے جسم پر جو ہے اللہ اکبر اس خوبصورت جسم پہ خون کے دھبے ایسے لگتے ہیں جیسے سلسبیل کے کنارے خوبصورت حوریں بیٹھ گئی ہے، یا علی اکبر کے جسم پر وہ خوبصورت جسم پر خون کے دھبے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے چاند پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو۔ اللہ اکبر، اس انداز کے ساتھ وہ زخم لگتے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی اکبر زمین پر آئے آپ نے آواز دی بابا، اور جب آواز پہنچی امام علی مقام تک، میرے امام دوڑ کر کے تشریف لائے، اشقیاء ہٹ چکے تھے، ان کا غبار چھٹ چکا تھا۔ دیکھا کہ مولا علی اکبر زمین پر اپنے پیر رگڑ رہے ہیں تکلیف کی وجہ سے، اور آپ جیسے
जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा बेटे क्या है? अर्ज की बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा बेटे सब्र करो। अर्ज की बाबा अगर ये नेजा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेजा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी जबान बाहर करके कहा बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर जमीन पे रखा। इब्ने असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा। अंदाजा तो करें बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी है। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे, लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेजा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साल ताकत और कुव्वत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही नेजा आपने खींचना चाहा, इब्ने असाकिर कहते हैं नेजे की अन्नी पर इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। जैसे ही इमाम अली अकबर का दिल इमाम हुसैन ने नेजे पे देखा, इमाम हुसैन के हवाले से इब्ने असाकिर कहते हैं अब तक मेरे हुसैन के दाढ़ी और सर का कोई बाल सफेद न हुआ था। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन इमाम अली मकाम को उन मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। आज 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का दिल मेरे इमाम ने जब नेज़े की अन्नी पे देखा तो इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन अपने बेटे का 18 साल के बेटे का लाश अपने कंधों पे डालते हैं, लाशा उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरे इमाम ने हाशमी खून की ताकत को आवाज दिया और उसके बाद फिर अपने कंधों पे लाशा डाला और फिर अली अकबर का लाशा लेकर खैमे की तरफ आए। अभी अली अकबर का लाशा खैमे में रखा ही था, एक रिवायत के मुताबिक हजरत शहर बानो और रुबाब, ये रुबाब इमाम अली मकाम की बड़ी चहीती बीवी है और आप इनसे बहुत प्यार करते थे। बहुत चहीती बीवी है इमाम की रुबाब। शहर बानो और रुबाब कहती हैं हुसैन एक बात माने ना। मौला हुसैन ने कहा अब किसी नई आजमाइश में मुझे मुब्तला न करो, मेरा इम्तिहान न लो, मुझे इम्तिहान में न डालो। बस ये बात हो ही रही थी कि उन सैयदा फातिमा की बहुओं ने कहा हुसैन हमारी बात मान ले, देखिए अली असगर प्यास से रो रो करके कभी बेहोश होते हैं, कभी होश खोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हुसैन ने कहा कहना क्या चाहती हैं? बीबियों ने कहा इस शहजादे को ले जाएं और पानी पिला करके लाएं। इस बच्चे की प्यास चंद कतरे ही तो हो सकती है, चंद कतरे पानी मांग ले। मेरे इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं बल्कि देना है, मैं नहीं जा सकता। ज़ैनब ने कहा भैया अपनी बहन को मायूस न करो, खुदा के लिए इस मासूम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी, आप ले जाएं इसे। वो कितने ही शकीउल कल्ब हैं, कितने ही सख्त दिल हैं, लेकिन बच्चों से तो काफिर भी नरमी करते हैं, बहरहाल ये कलमा पढ़ते हैं। आप ले जाएं, उनसे कहें अगर वो पानी पिला देंगे तो कम से कम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। बच्चे का रोना हमसे देखा नहीं जाता, हुसैन ले जाओ। मौला हुसैन चुप है। ऐसे में सकीना बोल पड़ी बाबा अपनी शहजादी सकीना की बात आप मान ले और मेरे भैया असगर को पानी पिला दे। मौला हुसैन ने
मासूम अली असगर को अपने हाथ में लिया। नन्हा सा शहजादा, 6 महीने का मासूम बच्चा, जिसकी प्यास 3 दिन की प्यास है। माँ का सीना खुश्क हो चुका है, दूध भी 3 दिन से नहीं पिया है। वो रोते हैं, रो करके होश खोते हैं, होश में लाए जाते हैं तो रोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। लोग कहते हैं अली असगर इसलिए रोते थे कि उन्हें प्यास की शिद्दत थी। हम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, अली असगर प्यास के लिए नहीं बल्कि जामे शहादत के लिए रोते थे। ये उक़दा तो बाद में खुला। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने बच्चे को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर के चले। हिम्मत नहीं होती थी जाने की, इसलिए कि हमेशा देना आदत थी। आज मांगे तो कैसे मांगे? जिन्हें मांगने की आदत होती है वो मांगने के ढंग जानते हैं, लेकिन जिसको कभी मांगने की आदत ही न थी, जिब्रील जिसके दरवाजे पर, जिसकी माँ की चौखट पे सवाली बनकर आता हो, वो कब किसके दरवाजे पर मांगने जाता। लेकिन मेरे इमाम के घर के सब लोग बजिद थे कि बच्चे को ले जाए। शहजादा इमाम अली असगर को मेरे इमाम ने अपने हाथ में लिया। ऐसा लगा फातिमा के चांद पर, अल्लाह अकबर, हुसैन का चांद रखा गया है। एक चांद पर दूसरा चांद, ऐसा लगता था जैसे एक चांद पर दूसरा चांद रख दिया गया हो। इसी आलम में मेरे इमाम आगे बढ़े, यजीदियों के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं, यजीदियों तुम्हारी नजरों में अगर कसूरवार है तो हुसैन है। इस बच्चे ने क्या किया है? इसे चंद कतरे पानी अगर पिला सकते हो तो पिला दो। इतना सुनना था। उन जालिमों ने कहा, हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत से बच्चे हैं, अगर इसको पानी पिला देंगे तो एक एक करके तुम बच्चे लाते रहोगे और हम क्या पानी पिलाते रहेंगे? ये बात कहने के बाद एक जालिम ने हुरमला बिन काहिल पलीद की तरफ इशारा किया और उस बदबख्त शकील को हुक्म दिया कि अली असगर पर भी तीर चला दिया जाए। जैसे मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हुआ, अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की गोद में नन्हा सा मासूम बच्चा था। बच्चे ने हल्की सी झुरझुरी ली और एक मासूम सी चीख निकली मैदान करबला में, और वो चीख वहीं पे खत्म हो गई। बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी ले रहा था। मौला हुसैन ने कभी गोद की तरफ कभी आसमान की तरफ देखा, और बेटे की हलक के अंदर, 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक के अंदर जब आपने तीर देखा तो आपने जल्दी से तीर निकालना चाहा। जैसे ही तीर आपने खींचा है पूरी ताकत से, अली असगर के हलक से खून की फुवार निकली जो इमाम अली मकाम के सीधा चेहरे पे पड़ी। इमाम अली मकाम ने उसे चेहरे पे मल लिया। बाज मौरखीन कहते हैं आपने अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद जो है उसको आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा आई, हुसैन अगर इसे तूने आसमान की तरफ उछाला क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा जमीन वालों पर। आपने जमीन पे डालना चाहा, आवाज आई, हुसैन एक कतरा दाना नहीं, एक अनाज का दाना नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर, अगर तुमने जमीन पर डाल दिया। इमाम अली मकाम ने उसे फिर अपने चेहरे पे मला, और चेहरे पे मलने के बाद कहते हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुसैन इसी हालत में लोगों के सामने आएगा, और रब की बारगाह में हुसैन इसी हालत में आएगा कि हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून लगा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन ने उसके बाद लाश अली असगर को उठाया और उठाने के बाद कहा, मौला 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली है, 6 महीने की इस नन्हे से कुर्बानी को भी कबूल कर ले। हुसैन बोझल कदमों से खैमे की तरफ आए। बीबियों ने मासूम बच्चे का लाशा देखा, चीखें निकल गई। सकीना लिपट गई अपने भैया से। ज़ैनब कुबरा अपने सीने से अली असगर को लिपटा करके रोने लगी। इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, अब सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग गुजरता हुआ नजर आ रहा है बीबियों को, आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन निपट गए, नहीं बाबा मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, मेरे बेटे मेरे बाद काफिले का सालार तूने बनना है, हुसैन की औलाद तेरे जरिए से जारी होनी है, हुसैन की नस्ल तेरे जरिए से चलनी है। तसल्लियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, धूल उड़ती हुई नजर आई। खैमों के दाईं तरफ से, सामने तो फौज थी, दाईं तरफ से गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मौला हुसैन ने हैरत इस्तिजाब के आलम में
उस गर्दो गुबार को देखा, वो गुबार छटा तो देखा कि एक ऊंटनी पर कोई सवार है और वो तेजी के साथ दौड़ते हुए आ रहा है। उसने जैसे ही इमाम को देखा, इमाम को देखकर कहा अल्लाह खैर करे, आपका ये हाल, अल्लाह आप पे सलामती नाजिल करे, आपकी आल पे सलामती नाजिल करे, क्या बात है? इमाम ने कहा तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता, जल्दी से अपना मुद्दा बोल, मुझे तो अपने मकसद की तरफ जाना है। उसने कहा इमाम मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ, मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ। दरअसल बात यह है मैं हज को गया था, हज को जब मैं गया था तो हज को जाने के बाद जब मैं हज करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा, वहां जाने पर मैंने देखा एक नन्ही सी शहजादी बुर्का ओढ़ करके और अपने आप को चादर में लपेट करके रोज़े रसूल पर आकर खड़ी होती है और दिन भर रोती है, और जो आता है उससे बातें करता है और उसकी बात सुन करके वापस चला जाता है। मैं भी गया, मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं फातिमा सुगरा हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। मेरा बाबा 6 महीने हो गए कूफा गए, मक्का जाने तक की खबर है, लेकिन कूफा जाने के बाद मेरे बाबा की कोई खबर नहीं, मेरे घर वालों की कोई खबर नहीं, ना कोई खत आता है, ना कोई कासिद आता है, ना कोई जवाब आता है, ना कोई बात आती है। जब वो यहाँ से गए थे तो मुझसे वादा करके गए थे बेटी तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई अली अकबर को भेजेंगे और तुम्हें मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे। मैं अली अकबर का इंतजार कर रही हूँ, कोई खत नहीं, कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं। काश कोई कूफा जाने वाला मेरा खत ले जाए और मेरे बाबा को पहुंचा दे। मैंने कहा शहजादी मैं कूफा का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बाबा हुसैन को जानता हूँ, अहले बैत का मुहिब हूँ, गुलाम हूँ अहले बैत का, मेरी सादत है कि मैं वो खत पहुंचा दूँ। उसने कहा आप कूफा के रहने वाले हैं, मेरे बाबा को खत ले जाएंगे तो मैं आपको बहुत कीमती इनाम दूंगी। और उसने एक दुपट्टा दिया मुझे, कहा कि ये दुपट्टा मेरी दादी सैयदा फातिमा का दुपट्टा है, ये इनाम के तौर पे ले जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकती इस वक्त क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। अलबत्ता ये वादा जरूर करती हूँ कि मेरा खत तुमने मेरे बाबा तक पहुंचा दिया तो वादा करती हूँ कयामत के दिन अपने नाना से तुम्हें जन्नत जरूर दिलवा दूंगी। ये कह करके उसने एक खत दिया, मैंने खत लिया और उसने छोटी सी एक गठरी दी। वो गठरी क्या थी? मैंने पूछा इस गठरी में क्या है? तो कहा इसमें जब मेरे घर के लोग, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, मेरी फूफी सब लोग कूफा जाने लगे थे तो मेरा एक छोटा सा भाई अली असगर भी उनके साथ था। इसमें अली असगर के लिए मैंने कुछ अली असगर के लिए मैंने कुछ खिलौने जमा किए हैं और उसके लिए कुछ नए कपड़े सिले हैं। इस छोटी सी गठरी में वही नन्हे नन्हे कपड़े हैं और कुछ खिलौने हैं। अब तो मेरे घर में असगर का झूला भी नहीं है, असगर का झूला भी वो साथ ले गए हैं। बहुत याद आती है असगर की, बाबा की याद आती है, भैया अली अकबर बहुत याद आते हैं। और ये खत ले जाओ और खत ले जाकर अली अकबर मिले तो उससे कहना कि अली अकबर तुम पर बहुत खफा है तुम्हारी बहन सुगरा, जब तुम मिलोगे तो खूब शिकायतें करेगी, ये बात कह देना और ये खत ले जाओ। इमाम ने कहा लाओ वो जल्दी से खत। गठरी हाथ में ली, वो कहता है कि मैं वो खत लेकर के चला। मैं कूफा जा रहा था कि रास्ते में मुझे पता चला कि बहुत बड़ी फौज है, तो मैंने सोचा कि फौज मुझे पकड़ न ले, इस तरफ मैंने कुदरती तौर पे रुख कर लिया और आप मुझे मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो खत मैंने आपको पहुंचा दिया। इमाम पाक ने वो खत लिया और उसके बाद वो गठरी ली। इतना ही तो कुछ कम न था, यही कुछ गम और अलम के तूफान तो कम न थे। अली असगर का जनाजा रखा हुआ है, बेगोरो कफन अली असगर का जनाजा पड़ा हुआ है, लाशा नन्ना सा। अभी उसी को देख देख कर सैदानियां रो रही है कि ऐसे आलम के अंदर
इमाम खैमे में गठरी और खत लेकर आते हैं। जैसे ही सैदानियों ने कहा ये क्या है, तो कहा सुगरा का खत है और ये अली असगर के लिए तोहफा है। जैसे ही ये बात सुनी एक कोहराम मच गया, गम फिर ताजा हो गया, जख्म फिर हरे हो गए और खून के आंसू, सैदानियां रोने लगी, सैयदजादियों की आंखों में आंसू आने लगे। वो गठरी जो कपड़ों की थी अली असगर के कदमों में ये कहकर रख दी गई, अली असगर लो, ये तुम्हारी बहन सुगरा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है और इसको कबूल कर लो। अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई और उसके बाद खत खोला गया। जैसे ही खत खोला गया तो वो खत का मजमून क्या था? बाबा से शिकायत, फूफी से शिकायत, भाई से शिकायत, सबसे शिकवे शिकायत। अली अकबर, मैं रोज तेरा इंतजार करती हूँ, रोज देखती हूँ रास्ता कि तुम आओगे, मुझे ले जाओगे, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अली अकबर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, जब तुम मिलोगे तो मैं तुमसे खूब शिकवे करूंगी। कभी बाबा से, बाबा आपने तो कहा था कि हम तुम्हें बुलवा लेंगे, आपने किसी को भेजा नहीं। कासिम के हवाले से, सकीना से बातें, खत पढ़ते गए, रोते गए। खुदा जाने कैसे उन लोगों ने अपने आप पे काबू किया। इमाम ने अपने आप पर काबू फरमाया, घर वालों को तसल्ली दी और उसके बाद मेरे इमाम आली मकाम ने करबला की तरफ रुख करना चाहा। बीबियों ने कहा अपना उजड़ता हुआ सुहाग देखकर, ए शहजादे रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, इब्ने रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, फातिमा के जाए अपना आखिरी सलाम ले। इमाम जाने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐसे नहीं, अपने खानदान की रीत और रिवायत के मुताबिक जाना, ऐसे नहीं जाना। सैयदा ज़ैनब एक गठरी बहुत संभाल करके लाई थी, उसमें बहुत से तबर्रुकात थे। जैसे ही गठरी खोला एक 17 पेवन वाला कपड़ा नजर आया। मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल करके इमाम हुसैन से कहा, हुसैन इस कपड़े को पहचानते हो? इस कपड़े के मुतालिक तुम्हें इल्म है? इमाम ने जैसे वो कपड़ा देखा माजी में खो गए, आंख में आंसू आ गए और मेरे इमाम ने कहा, बहन ये अम्मी का दुपट्टा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई जिस दिन अम्मी दुनिया से जा रही थी और आखिरी रात थी, मेरा बचपना था, मैं भी तो छोटी ही थी, उस वक्त अम्मी ने कहा था, ज़ैनब मेरा ये दुपट्टा जो मेरे बाबा ने मुझे रुखसती के वक्त उड़ाया था, 17 पेवंदों वाला, ये दुपट्टा तुम अपने साथ रखना और जब करबला में तुम्हारा कोई साथी ना हो और मेरा हुसैन मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने जा रहा हो तो उस वक्त तो उसकी कमर कसने के लिए मेरे दुपट्टे का इस्तेमाल करना, मेरे दुपट्टे का पटका बनाना। भाई माँ ने तुम्हें दुपट्टा दिया था इसलिए कि जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल हो वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने भाई को पटके के तौर पे माँ का दुपट्टा बांधा और उसके बाद नाना का अमामा सर पर सजाने के लिए दिया, हजरत जाफर तैयार की जो है ढाल दी और उसके बाद अल्लाह अकबर आपने अपने बाबा अली मुर्तजा की तलवार दी। मेरे इमाम ने इस शान के साथ जो है घोड़े पर कदम रखा, उसकी बड़ी तवील सी दास्तान है लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा इमाम आली मकाम अपने घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होने के बाद आप जो है वो मैदान करबला की तरफ जा रहे थे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। इन्नी आलमो माला तालमून का राज अगर समझना चाहते हैं तो आज फरिश्ते झांक करके देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया था। इसलिए कि जमीन पर खून रेज़ी जो है फरिश्तों की निगाह थी, लेकिन खुदा की मोहब्बत में पूरा घर बार लुटाने वाले हुसैन की तरफ किस थी। अल्लाह अकबर। मेरा मौला हुसैन मैदान करबला की तरफ बढ़े, बीवियां हसरत व यास का पैकर बनकर जो है खड़ी हैं। ऐसे में मौला हुसैन अपने घोड़े को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, पीछे मुड़ करके देख सकीना लिपटी हुई है घोड़े के कदमों से। मौला हुसैन फिर उतरे से चिमचिमटाया और उसके बाद सकीना कहती थी, बाबा आप मैदान में न जाएं, इसलिए कि अगर आप मैदान में गए बाबा जो जाता है
وہ लौट करके नहीं आता। चचा अब्बास गए, लौट कर नहीं आए। अली अकबर गए, लौट कर नहीं आए। कासिम गए, लौट कर नहीं आए। औनो मोहम्मद गए, लौट कर नहीं आए। अली असगर को ले जाया गया, अली असगर भी जिंदा बज़ाहिर लौट कर नहीं आए। बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे सकीना का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरे बाबा आप जाएं तो बाबा किसको कहूंगी, आप जाएं किसके सीने पे सर रख के आराम करूंगी, मेरी जिद को कौन पूरी करेगा। बाबा बाबा आप न जाएं। मेरे आका हुसैन ने नन्ही सी बेटी सकीना को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, बेटी मैं जाता हूं, तेरी कद्र मेरे नाना की उम्मत करेगी, तेरा एहतराम मेरे नाना की उम्मत करेगी। बेटी जब तेरा नाम लिया जाएगा तो अदब से आशिकाने अहले बैत सर को झुका लेंगे, क़यामत तक तुझ पर दुरूद और सलाम की सौगातें पेश की जाएगी। मेरी बेटी मेरे मकसद की राह में रुकावट न बन। बेटी को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और उसके बाद अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लाठी का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा किया। बाबा आप नहीं जाएंगे, आप जब तक मैं हूं आप नहीं जाएंगे। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, सीने की अमानतें सीने में मुंतकिल की और उसके बाद जाने वाले इमाम ने आने वाले इमाम को अपना नायब मुकर्रर किया और मेरा इमाम घोड़े पर सवार होकर सूए करबला रवाना हो गए। करबला का ताजदार आज सीरत मुस्तफा का ततिम्मा करते हुए आप सीरत मुस्तफा का बाब मुकम्मल करने जा रहा है। अब दीन क़यामत तक किसी का मोहताज न रहेगा। आले मोहम्मद का लहू दीन की रगों में शामिल होगा तो अब दीन किसी का मोहताज न रहेगा। हुसैन अपने घोड़े पे सवार होकर के निकले, पूरी शान के साथ करबला के मैदान में कदम रखा। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने जो है देखा तो बुज़दिली की। मेरे इमाम ने फिर एक मर्तबा इत्माम हुज्जत किया, मैं अली का बेटा, नबी का नवासा, फातिमा का नूरे नजर हूं। आज मेरे सिवा रूबे जमीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मेरे खून में अपने हाथ को रंगीन मत करो, हक को मान लो, दीन की तरफ आ जाओ, शरीयत के मुहाफिज बन जाओ, यजीद पलीद को छोड़ दो। मेरे इमाम ने कहा अगर तुम हक का साथ दोगे आज भी तो मैं अपनी औलाद के कातिल को आज भी माफ करने के लिए तैयार हूं। हक का साथ देने वाले बन जाओ। लेकिन उन पलीदों की दिलों पर मुहर लगी हुई थी और कुदरत की तरफ से पहले ही दिन से रोज़े अज़ल उनका जहन्नमी होना, लानती होना लिख दिया गया था। उन लोगों ने एक न सुनी। मेरे इमाम ने उनसे जंग की। करबला के उस मुसाफिर ने जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठा उठा कर कंधा बोझल हो चुका था, मेरे इमाम लड़ते लड़ते आखिरकार आपका घोड़ा भी जो है थक करके इंतकाल कर गया। घोड़ा काम आ गया, मौला हुसैन पैदल हो गए और आपने जो है मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत ये भी है कि आप जमीन पर पैदल हो गए और आपने वो सवारों से जो है जमीन पर लड़ाई की और आप खूब लड़े। लड़ते लड़ते जब थक गए और आपके जिस्म पर बहुत सारे जख्म आए, कहने वाले कहते हैं कि 72 जख्म आपके जिस्म पर थे, लेकिन बाज मुहक्किकीन ने यह भी कहा 100 से जायद जख्म आपके जिस्म पर थे और अल्लाह अकबर तीर जिस्म में घुसे जा रहे थे। आखिरकार आपकी पेशानी पर एक तीर लगता है और आप पर गशी की कैफियत तारी होती है और फातिमा का लाल, फातिमा के चांद को गहन लग जाता है और आप जमीन पर आते हैं। आज करबला की दास्तान गोया के तकमील को पहुंचती है। इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर जमीन पर इस शान से आते हैं कि घुटने जमीन पर रखे हुए हैं। गोया फरिश्तों की चीखें निकल गई, हुराने बहिश्त आहें करने लगी, जमीन का सीना दहल गया। अर्श को जो है वो अल्लाह अकबर अर्श दहलने लगा, इसलिए कि जिस हुसैन के लिए कभी सजदे तवील किए गए थे, हुसैन पाक मस्जिद में आते हुए उनके कदम डगमगा रहे थे तो रसूल पाक ने जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर करके उस हुसैन को सहारा दिया था और अपनी गोद में उठा लिया था। आज वही हुसैन, एक वो दिन था जुमा के खुतबे का वक्त था, हुसैन जो है डगमगा रहे थे, नबी मिंबर से उतर आए और आज भी जुमा का दिन था, 10वीं मुहर्रम थी और अल्लाह अकबर मेरे मौला हुसैन जमीन पर आ रहे हैं। गोया के रसूल पाक की रूह कांप गई होगी, सैयदा फातिमा बेकरार हो गई होगी, अंबियाए किराम की अरवाह बेचैन हो गई होगी। मेरे इमाम अपने घुटनों को जमीन पे रखते हैं, सर सजदे में रखते हैं। सब कुछ लुटा देने वाला हुसैन आखिरी में जान की नजरें पेश करके कहता है अब यार से कहो कि अब भी तू राजी नहीं, लेकिन खुदा की कसम वहां तो ये पूछा जा रहा था हुसैन तू हमारी रजा पूछता है, अब बता कि तू राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर, खुदा बंदे से खुद पूछे बता
تیری رضا کیا ہے؟ سنان ولد الشیطان پلید نے جو ہے تلوار اٹھائی اور میرے امام کے سر پہ وار کیا، اور امام پاک کے سر پہ وار کر کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑی تھی دوڑ کر حسین سے چمٹ گئی، اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سلام تیری عظمت کو، تم نے شہید ہو کر دین کی کشتی بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، آپ نے سب کچھ لٹا کر شریعت بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، قیامت تک تیرے غلام تیری قربانی کا حق ادا نہ کر سکیں گے میرے مولا۔ ہم آنسوؤں کی چند نظریں پیش کر سکتے اور کیا دے سکتے ہیں میرے کریم آقا؟ ہماری آنسوؤں کی نظریں قبول کر لیں، ہمارے آنسوؤں کا خراج قبول کر لیں میرے آقا، محبتوں کی یہ سوغات قبول کر لیں میرے آقا۔ آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے خدا کے سوا، آپ کے نانا کے سوا آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے سب لٹا کر دین بچایا، آپ نے سب لٹا کر قرآن بچایا، آپ نے سب لٹا کر ایمان بچایا، آپ نے سب لٹا کر شریعت بچائی، آپ نے سب لٹا کر نماز بچایا۔ اٹھتی ہوئی اذانیں، مینار سے اذان کی اٹھتی ہوئی آوازیں جب جب بھی اللہ اکبر کہے گی، حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گی، جب بھی نمازی سر سجدے میں رکھے گا، ہر سجدہ حسین کے احسان کو سلام پیش کرے گا، جب بھی قاری قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کا ایک ایک حروف کربلا والے کو خراج عقیدت پیش کرے گا، جب بھی دنیا کے اندر اسلام میں وقت آئے گا، حسینی عزم لوگوں کو پھر سے ابھار کر کے اسلام کا محافظ و پاسبان بنا دے گا۔ بیویاں خیموں سے کھڑی ہو کر کے، خیموں کے دروازوں پہ کھڑی ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہی ہے، مولا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔